Physics Chapter 1, Doubt Solving of Exercise 1C. So many of you asked me many doubts from the exercises which I had given to you. So most probably in this session we are just going to do doubt solving. So many questions are in doubt, right? Everybody has asked me a couple of doubts and all are different. So if I club them together, then it becomes a huge doubt solving session. And if time remains, then I can take this ahead. But let us first clear the doubts and then we will see what to do. The first doubt from exercise 1C is question number 2. Give 3 examples in which average speed is not equal to magnitude of average velocity. Okay. Now, whenever a body travels on a circular path, the average velocity is 0 because displacement is 0 on circular path, right? The body starts from a point and comes back to a point, let's say. So, first example, I will write it as a body traveling on a circular path, right? The average velocity may be 0, but average speed is never 0. One more example where average speed is not equal to the magnitude of average velocity. A body traveling in a straight line suddenly makes a U-turn. A body traveling in a straight line, if suddenly makes a U-turn, its displacement goes on decreasing, but distance goes on increasing. So average speed will not be equal to average velocity, right? Average velocity might be smaller than average speed. That is one more example. And the third example. Okay, I was just searching for the examples and then I thought that I should go back and have a look here. So you remember we saw these examples in the last video. The first example, when a body was traveling in a straight line, average speed was equal to average velocity. In the second example, when the body suddenly makes a U-turn, it changes its direction, then average speed will be greater than average velocity, which example we have already taken. One example which we have not taken is this one, when motion is not in a straight line. Again, average speed is greater than average velocity. Here, in this example, Divya travels from her house to Priyanka's house and then from Priyanka's house to school. So the motion is not in a straight line. Hence, the here average velocity is 4 root 2 and average speed is 8. In this case also is average speed greater than average velocity. And the last one, we have already taken this example for a curved path, average speed is greater than average velocity, right? So for our question, the answer we have to write will be one among these examples, right? So let us list. So body traveling on a circular path, that was the last example which we wrote first, that whenever a body travels in a circular path, the average speed will be greater than average velocity. Whenever a body is traveling in a straight path, suddenly makes a U-turn, average speed will be greater than average velocity. And the third one, whenever
a body's motion is not in a straight line. Whenever a body's motion is not in a straight line, that is also the case where average speed is greater than average velocity. That the example which we saw was that uh, when Divya travels to Priyanka's house and then to school, that example. In that, they were not traveling in a straight line. So average speed was greater than average velocity. Right? So that was the answer of question number 2. Let's go to question number 5. The next doubt is question number 5. An artificial satellite. Okay, just let me make it a little smaller if I can. Can I make it a little smaller? Okay. 5, 6, 7, 8. Here all are doubts. So I will mark them again, no problem. 5, 6, 7, 8. Okay, I hope you can read it on your screen. And if you cannot read it on your screen, then I want you to write it down because I'm going to solve just next to it over here. Okay, an artificial satellite orbits in a circular path. The height of satellite from the surface of Earth is 36,000 kilometers. Okay, so let's draw this diagram. Let's suppose that this is Earth. An artificial satellite is orbiting around Earth in this particular orbit. So here is the satellite, and this is the distance of the satellite from the surface of the Earth. So the distance is height is equal to 36,000 kilometer. 36,000 kilometer. Okay, such a satellite is called geostationary satellite. Okay, now geostationary means this satellite will be continuously above a certain area of Earth's surface. जैसे कि हमारे इंडिया के ऊपर बहुत सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं. अर्थ घूमता है, इंडिया की पोजीशन चेंज होती है, सैटेलाइट भी अपनी पोजीशन उस हिसाब से चेंज करता रहता है. तो ग्रेविटी ये सैटेलाइट को पुल करके रखती है. अर्थ घूमता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ घूमता है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तुम 11th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में. ठीक है, तुम सोचोगे ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको क्यों दिया है. डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोचो. जब भी ऐसा लंबा क्वेश्चन आए ना 2-3 बार पढ़ने का, उसके बाद उसको छोड़ो या जो भी करना है. Such a satellite is called geostationary satellite. When the satellite is exactly vertically upwards the ground station, it sends a signal. How much time will the signal take to reach the ground station? And the speed of signal is 3 into 10 raised to 8 meter per second. अब देखो height दी है. This height I can consider to be as distance. 36,000 किलोमीटर. इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ता है. सो 36,000 इंटू 1000. इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 रेज टू 6. 10 रेज टू 6 का मतलब 6 जीरो, 6 जीरोस अहेड ऑफ 36. और एक साइंटिफिक फॉर्म बताता हूँ, 3.6 इंटू 10 रेज टू 7 मीटर. ये प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डाल दिया, और क्योंकि यहाँ पे 10 रेज टू 6 था और मैं डेसिमल पॉइंट एक्चुअली यहाँ था, उसको मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, तो मैं एक नंबर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. ये तुमने क्लास 8th में पढ़ा रहेगा. ठीक है. सो तुम बोलोगे कि क्या सर ज़रूरी है ऐसा लिखना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे तुम्हें इसी लैंग्वेज में बात करनी है. ठीक है. 10th में और 9th में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म ऑफ नंबर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो you start getting familiar with the scientific formation.
of numbers, scientific method of writing numbers. Speed of signal v कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तुम्हें क्या ढूंढना है, टाइम फॉर द सिग्नल टू रीच द ग्राउंड स्टेशन. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इट मीन्स दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁷ और स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ तो ये 3 और ये 3.6 कट होके 1.2 आएगा और 10⁸ और 10⁻⁷ कट होगा, एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे 10⁻⁻1 आएगा. तो टाइम कितना लगेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.12 सेकेंड्स. टाइम लगेगा कितना 0.12 सेकेंड्स. तो जिसको भी डाउट हुआ रहेगा इस क्वेश्चन में, आई थिंक तुमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं. तुमने सैटेलाइट और 36,000 किलोमीटर देख के ही और जियो स्टेशनरी तो सुन के ही तुमने छोड़ दिया, बोलते होगे ये तो डाउट ही है पक्का. कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ गया या थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए उसमें तो पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा डाउट छोड़ देते हैं. कुछ बच्चे यहाँ भी अपने क्लास में हैं ऐसे बच्चे. जिसने मुझे डाउट पूछा था आई एम श्योर वो उसका यही आइडिया रहा रहेगा. ठीक है, बट इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग डाउट्स एटलीस्ट. बट डाउट्स पूछने का और भी एक फ़ायदा है कि अगर मैंने 18 क्वेश्चन दिए हैं और तुम 50% मुझसे डाउट पूछ लो तो तुम्हारा होमवर्क फिर 50% ही करना रहा, राइट. सो ये एक फ़ायदा है. लेकिन मेरे पास मैं तुमसे भी ज़्यादा शातिर हूँ. मैं अभी क्या कराऊंगा पता है तुमसे, ये पूरा होमवर्क लिखवाऊंगा और फिर से सबमिट करवाऊंगा. बहुत अच्छा आइडिया है ना. चलो नेक्स्ट करते हैं. ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वो साइड करते हैं, राइट साइड में क्या है. अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. A body travels a distance of 10 kilometer with a constant speed of 30 kilometer per hour, and then the next 40 kilometer at the constant speed of 50 kilometer per hour. अच्छा, तो ये डिस्टेंस 1 स्पीड 1 और नेक्स्ट डिस्टेंस 2 कितना 40 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. पूरी जर्नी के एवरेज स्पीड ढूंढो. अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में. अगेन डाउट पूछने वाले के इंटेंशंस को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई तुमने क्या, भाई या बहन जो भी है, तुमने क्या सोच के मुझे डाउट पूछा है. तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेरे वीडियो के देखते हो या ऐसे ही वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा सीधा मेरे मुंह पे डाउट फेंक रहे होगी. कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ. मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जिनको चेक करना है उनका आंसर करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, तो बेसिकली मुझे ढूंढनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, टोटल टाइम कैसे ढूंढेंगे. तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले दोनों केसेस का टाइम निकाल लेते हैं. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, that is 10 upon 30, 1/3 r, 1/3 r. ठीक है, टाइम 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन, सो 40/50, 4/5 आवर्स. दोनों टाइम आ गए तो टोटल टाइम निकाल लो. सो टोटल टाइम हो जाएगा 1/3
प्लस 4/5, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, सो 5 + 12/15 दैट इज 17/15 आवर्स। 17/15, तुम बोलोगे सर ये बहुत अजीब नंबर आ रहा है 17/15, कोई बात नहीं ना, इसको सॉल्व करना है अपने, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, कितना सॉल्व होता है। सो एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2 50, और टोटल टाइम कितना है? 17/15, सो 50 × 15/17, इससे मिलेगी तुम्हें एवरेज स्पीड। पॉइंट्स में हम लोग निकालेंगे इसको, सो इट गिव्स यू 44.12 किलोमीटर per hour. 44.12 kilometer per hour. This is the average speed if you calculate, right? Okay, next question please. नोट कर लिया ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्या है? A boy goes to a market at an average speed of 29 kilometer per hour. यहाँ पे लिखते हैं इसको। 7th question. A boy goes to a market at an average speed of 29 kilometer per hour. Average speed क्या है? 29 kilometer per hour. Finding the market closed, he immediately returns back by the same path with an average speed of 40 kilometer per hour. तो मार्केट बंद था और लड़का टर्न मार के वापस आ गया सेम पाथ से, और उसकी रिटर्न जर्नी का एवरेज स्पीड, एक्चुअली यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखना चाहिए मुझे V1, ठीक है? एवरेज स्पीड V1 इज इक्वल टू 29 किलोमीटर पर आवर, फिर लिखना चाहिए एवरेज स्पीड V2 विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट जर्नी। ओके, पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है? तो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम बॉयज होम टू मार्केट बी x किलोमीटर, ठीक है? तो केस 1 में क्या हुआ? केस 1 में वो बॉय ने x का डिस्टेंस कवर किया और v1 स्पीड से, मतलब 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया मार्केट, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x/29 आवर्स लगे होंगे उसको। केस 2 में क्या हुआ कि जो बॉय था उसने देखा मार्केट बंद है, तो वापस अपने घर पे गया। तो मार्केट से घर से मार्केट के लिए x किलोमीटर लगा था, तो मार्केट से घर के लिए अगर सेम पाथ लेगा तो वापस उसको x किलोमीटर जर्नी करनी पड़ेगी। कितनी स्पीड से वो वापस आया? स्पीड में आया फटाफट, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा? ये T1 है, ये T2, उसको टाइम लगा होगा x/40 किलोमीटर पर आवर, आई एम सॉरी, x/40 आवर, सीधा आर, किलोमीटर पर आवर नहीं, क्योंकि टाइम देख रहे हैं ना हम लोग, x/40 आवर्स, ठीक है? तो ये दोनों केसेस है। अब मुझे क्या ढूंढना है? एवरेज स्पीड। मिल जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है? सो यहां पे लिखता हूं मैं, therefore average speed is equal to total distance upon total time। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x + x, और टोटल टाइम कितना है? x/29 प्लस
x बाय 40, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 40x प्लस 29x द होल अपॉन 40 इंटू 29, 40 इंटू 29 विच इज 1160। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। सो ये हो जाएगा 1160 मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन 40 प्लस 29 इज 69x। ठीक है, ये x x कट जाएगा। अब हम लोग ये जो 110 आया 1160 सॉरी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2320 आता है, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 69 से, तो कुछ आता है 33.6। कितना आया एवरेज स्पीड? 33.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज स्पीड व्हेन द बॉय रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। वो x किलोमीटर गया 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको जो टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसको टाइम लगा x अपॉन 29। फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर करके वापस आया, तो टाइम लगा x बाय 40। ठीक है, दोनों टाइम को ऐड किया, दोनों डिस्टेंस को ऐड किया, तो x कट गया और मुझे मिला 33.6 किलोमीटर पर आवर। प्लीज जिसने भी आंसर निकाला है वो चेक कर लो, ये करेक्ट आंसर है। फिर सॉल्व करके आ गया आंसर। अच्छा, अभी इसमें और एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंप्लीट जर्नी। अब ये बॉय की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉय, सेकेंड आंसर है, इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। तुम बोलोगे क्यों है ये ऐसा? ये ऐसा इसलिए है बिकॉज वो बॉय वापस अपने घर पे आ रहा है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उतना उसका? 0। कहां से चला था वो? कहां से शुरू किया था उसने जर्नी? घर से। घर से कहां गया? मार्केट। मार्केट से कहां आया? वापस घर। तो मतलब उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय कितनी हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। मैंने डायरेक्ट लिखा है बट एक्सप्लेन किया है मैंने ओरली, तुम ये लिख के एक्सप्लेन करोगे। अच्छा, यहां पे देखो क्या है, 8th क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन इफ द बॉय कवर्स हाफ द पाथ ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओहो, तो वो लोग क्या पूछ रहे पता है कि अगर इसमें वो जो बॉय है वो घर से मार्केट तो गया, लेकिन मार्केट बंद होने से वापस आने के बाद वो वापस घर नहीं गया, वो आधे रास्ते में ही रुक गया। हो सकता है आधे रास्ते में उसके फ्रेंड का घर हो, उधर चला गया, या फिर आधे रास्ते में उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे क्रिकेट, उनके साथ खेलने लगा, कोई प्लेग्राउंड में चला गया। तो आधा आधा ही रास्ता उसने कवर किया आते टाइम, मतलब वो जाते टाइम x किलोमीटर गया, आते टाइम x बाई 2 किलोमीटर आया। ठीक है, और उसकी जो जाने की और आने की स्पीड है वो वही है जो क्वेश्चन नंबर 7 में ली थी। तो अब उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? तुम्हें चाहिए कि मैं सॉल्व करूं तुम्हारे लिए, या तुम अपना दिमाग फोड़ोगे थोड़ा बहुत इसके पीछे? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ बोल रहा हूं कि जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में जाने का डिस्टेंस x है और वापस आने का x बाई 2 है, जैसे कि यहां फिगर में बताया है। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 3x बाई 2 हो गया। ठीक है, 3x बाई 2 टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम कितना है?
टोटल टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। यहाँ जो हमने टाइम निकाला था वो x किलोमीटर के लिए निकाला था, ठीक है, तो वो टाइम नहीं चलेगा, तुम्हें टोटल टाइम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और फिर तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8th क्वेश्चन में अभी भी छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए कि थोड़ा चैलेंज ले लो यार लाइफ में और ये ट्राई करो। इतना इजीली हार मत मानो, थोड़ा डिफिकल्ट है मैं जानता हूँ, इतना डिफिकल्ट तो बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये सॉल्व कर पाओगे तो फिर तुम कोई भी टेस्ट अपीयर कर सकते हो, कोई भी टेस्ट में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स नाउ। 7th भी सॉल्व किया, अभी 8th तुम्हें आगे खुद से करना है, ठीक है, अगर फिर भी हेल्प लगे तो मैं करूँगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? 10th क्वेश्चन में डाउट था किसी को। द ओडोमीटर ऑफ अ कार, एक मिनट, तुम सबको दिख रहा है ना 10th क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने? The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. Odometer क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। तो स्टार्टिंग में था 2000 और एंड ऑफ द ट्रिप पे 2400 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 2400 माइनस 2000, दैट इज 400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ट्रिप को कितना टाइम लगा? 8 hours. Find the speed, average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में ढूंढते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400 अपॉन 8, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड हो गई, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इसको अभी मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, ठीक है। अभी कुछ कॉमन है तो कट करो, 2 9 जा, 2 25 जा, 25 और 5 कटेगा नहीं आगे, सो 25 5 जा 125 अपॉन 72, इनको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। मैंने एक गलती की है यहाँ पे, मैंने 8 क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं शायद नींद में हूँ, मैं फिर से करता हूँ, सो दिस विल बी 50 into 5/18, that's it, और कुछ नहीं करना है। so 2 9s are and 2 25s are, so it will be 125/9। अब आएगा आंसर। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने 8 क्यों लिखा वहां पे। so 125 divided by 9 is 13.9 या 13.89, so we'll write 13.9, राउंड ऑफ करके 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये कार की स्पीड है मीटर पर सेकेंड। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 15 इस पेज पे क्वेश्चन है, डाउट्स है 12 एंड 15। ओके, ट्वेल्व 15। Starting from stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. चलो, starting from stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity. Attain a velocity मतलब starting from stationary position मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और अटेन अ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में किया ये? 30 सेकेंड्स में। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो मतलब इसके बाद क्या होता है? वो ब्रेक अप्लाई करता है। अब इसके बाद जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है, उससे पहले वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये सब कितने टाइम में हुआ?
नेक्स्ट 5 सेकेंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस. ओके, केस 1 का यहाँ पे देखते हैं. a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. फॉर्मूला तो तुम्हें लर्न हो गया रहेगा अब तक. ओके, v कितना है? 6 माइनस 0 अपॉन 30, दैट इज 6 बाय 30 विच इज 1 बाय 5. ठीक है, 1 बाय 5 कितना होता है? 1 बाय 5 होता है 0.2. सो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में क्या होगा? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. v है 4, u है 6, टाइम है 5, और ये होगा माइनस 2 बाय 5 विच इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration is negative in the second case because he had applied brakes, right, in the second case. Very easy, very simple question. Question number 15th जो next doubt है किसी को, यहाँ पे करता हूँ मैं. A car travels 40 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. Okay, so distance S1 is equal to 40 kilometer at a uniform speed v1 of 40 km per hour. What should be its speed for next 80 km? Next 80 km को S2 ले लेते हैं. Next 80 km के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? v2 how much? If the average speed of the entire journey is 60 km per hour, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे दी है. एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार फॉर 80 किलोमीटर बी x किलोमीटर पर आवर. Let the speed of the car for 80 km be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें यहां पे लेना पड़ेगा केस 1 और केस 2. केस 1 में डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 40 बाय 40, दैट इज 1 आवर. ठीक है, इतनी स्पीड है फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए. केस 2 में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, बट उसकी स्पीड हमको नहीं पता है. हमने ली है x किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम कितना हो जाएगा? S2 बाय V2, मतलब 80 बाय x आवर्स. सो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2. अगर तुमने सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से देखे थे तो मुझे नहीं लगता इसमें इश्यू आना चाहिए. फिर भी ठीक है, चलो. 1 प्लस 80 बाय x, दैट इज x प्लस 80 बाय x आवर्स. x प्लस 80 बाय x आवर्स एलसीएम लेने के बाद ये टोटल टाइम आ गया. अब क्या है? अब उसने बोला है कि पूरे जर्नी की जो एवरेज स्पीड है ना, वो 60 किलोमीटर पर आवर है. तो चलो फिर एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड कितनी है? 60. टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो, टोटल डिस्टेंस पहले 40 किलोमीटर है और बाद में 80. 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर. और टोटल टाइम है x प्लस 80 बाय x. ठीक है,
So 60 multiplied by x plus 80 by x is equal to 120. So 60 bracket x plus 80 is equal to 120x. 60 bracket x plus 80 is equal to 120x. तो क्या हो जाएगा ये 60x प्लस 60 इंटू 80 कितना होता है 4800 इज इक्वल टू 120x. इसको सॉल्व कर लेंगे आगे. सो 4800 इज इक्वल टू 120x माइनस 60x. ये 60x वो साइड शिफ्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो 4800 इज इक्वल टू 60x. So x is equal to 4800 divided by 60, that is 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour. So that is the average speed. Sorry, that is the speed of the car for next 80 kilometer. Right? तो ये 15th क्वेश्चन था. आई होप यू अंडरस्टूड. अब 17, 18, 19 लास्ट 3 क्वेश्चन. चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है. सेवनटीन, 18, 19. 17th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नीचे करता हूँ सर्च. 17th question. A body covers half of its journey with a speed of 60 km per hour and other half with a speed of 40 km per hour. Then find the average speed during the whole journey. यार ये इतना easy question क्यों यार डाउट में डाल दिया. हाफ ऑफ इस जर्नी, ऐसा हमने सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया था. तो तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं हो यार, ऐसे ही डाउट डाल देते हो. टाइम पास कर रहे हो यार तुम लोग. केस 1. ये हाफ ऑफ दिस जर्नी है ना, हाफ ऑफ द जर्नी. उसमें तुम डिस्टेंस को ले सकते हो. चलो पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं. ठीक है, ये केस 1 डायरेक्ट मत लेना. लेट द टोटल distance of the journey be x किलोमीटर. सो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना x बाई 2 किलोमीटर हो जाएगा. केस 1 में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा x बाई 2 किलोमीटर, क्योंकि वो हाफ ऑफ द जर्नी कर रहा है कवर. और उसकी स्पीड क्या है v1 60 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यहां पे जो स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी है तो हम लोग डिस्टेंस भी मीटर में ले लेते हैं. ठीक है, किलोमीटर में रखने का कोई फायदा ही नहीं है फिर. तो यहाँ पे इसको x मीटर लो, इसको x बाई 2 मीटर. ठीक है, तो टाइम मिल जाएगा हमें. टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x by 2 upon 60, that is x by 120 hours. X by 120 hours. ये क्या है, ये है टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. केस 2. S2 is equal to x by 2 meter. V2 is equal to 40 meter per second. T2 is equal to S2 by V2. So x by 2 the whole upon 40, which is equal to x by 80 hours. ये hours नहीं है, seconds है यार. मीटर पर सेकेंड है ना स्पीड.
एक मिनट, तो ये होगा सेकंड्स, ये भी होगा सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमने x ले लिया और टोटल टाइम हमें मिल गया, मतलब टाइम 1 और टाइम 2। अब हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, x/2 प्लस x/2, और टोटल टाइम कितना है, x/120 प्लस x/80। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 120 और 80 का एलसीएम कितना होता है, 240। 120 2 जा 80 3 जा, राइट। देखो ऊपर हो जाएगा x/2 प्लस x/2 हो जाएगा 2x/2, दैट इज x, और नीचे एलसीएम हो जाएगा 240, सो दैट इज 2x प्लस 3x द होल अपॉन 240, so that is 240x upon 5x. So 240 upon 5. So 5, how much the 240? 5 4s are 20. 4 will come down, and 5 8s are 40. Right? So average speed comes out to be 48 meter per second. Remember, everything is in meters and seconds, so average speed is also in meter per second. So that was your question number 17. What is the next doubt? Question number 18. Let's do it here. क्या है 18 में? A car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. What is its acceleration? A car traveling at 20 kilometer per hour, मतलब initial velocity 20 kilometer per hour, speeds up to 60 kilometer per hour. ठीक है, in 6 seconds, time is equal to 6 seconds. What is its acceleration? So acceleration is v minus u upon t. लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि टाइम सेकंड में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। सो बिफोर यू गो अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेंज द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 5/18, 2 9s are 2 10s are 50/9 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18, 6 3s are 6 10s are 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इजीली निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 50/3 माइनस 50/9 अपॉन टोटल टाइम कितना है 6। एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 3 3s are 9 हो जाएगा, सो 150 माइनस 50, 150 minus 50 upon 9 the whole upon 6. देखो अब क्या होगा पता है, ये 9 नीचे चला जाएगा, सो 150 माइनस 50 हो जाएगा ऊपर 100, राइट। सो 100 अपॉन 6 इंटू 9 चाहिए, तो इसको कट कर लो, 2 50s are 2 3s are, सो ये हो गया 50/27। ये इसका एक्सेलरेशन आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, सो कैलकुलेशन माइट बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू। 50 divided by 27, 1.85, 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन, राइट।
तो मैंने स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ढूंढना 18th में, शायद वही तुम्हारा डाउट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 50 seconds with constant velocity. Find the velocity. अच्छा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है और ब्रिज की लेंथ 200 मीटर है और टाइम 50 सेकेंड्स है, वेलोसिटी ढूंढनी। बताता हूँ तुम्हें, इसके लिए मुझे बहुत जगह चाहिए। तो सपोज ये ब्रिज है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये ब्रिज है, ठीक है, और ये ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन यहां से ब्रिज में एंटर हो रही है, ठीक है, ये ट्रेन है, यहां से वो एंटर हो रही है ब्रिज पे, और यहां से ट्रेन निकल गई ब्रिज से। ये दो सिनेरियो जरा समझ लो। ट्रेन ने यहां, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 मीटर, और ब्रिज की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। सही है ना? देख ले, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर, करेक्ट है बिल्कुल। ब्रिज की लेंथ है 200 मीटर। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो ट्रेन पहले यहां पे आई, ठीक है, अब यहां से उसने ब्रिज को एंटर करना शुरू किया। कुछ देर बाद पता है ट्रेन कहां होगी? मैं अलग कलर से बनाऊंगा। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी ब्रिज के अंदर आ जाएगी। ये 100 मीटर की ट्रेन पूरी ब्रिज के अंदर आ जाएगी। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी यहां पे आ जाएगी। ये ट्रेन की ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ट्रेन ने करेक्ट। और फिर ट्रेन निकल जाएगी बाहर यहां पे। मतलब जब तक ट्रेन का ये आखिरी हिस्सा बाहर नहीं निकलता तब तक वो ट्रेन ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, मतलब ब्रिज पे से गुजर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल, अगर तुम मेरे से पूछोगे इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ, ठीक है। कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 100 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है? 200। मतलब ट्रेन पूरा 300 मीटर कवर करेगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। ब्रिज तो 200 मीटर का है ही, लेकिन ट्रेन को खुद की लेंथ को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ब्रिज से। सिर्फ ट्रेन का इंजन बाहर निकल गया ब्रिज से तो थोड़ी चलेगा, ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे तक को बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ट्रेन की पूरी लेंथ ब्रिज से गुजरनी चाहिए, इसलिए 300 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द ट्रेन। और ये कितने टाइम में करता है? ये तो डिस्टेंस है, टाइम कितना है? 50 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 300 बाय 50, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है और वो 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 50 सेकेंड्स में कवर करता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर पर सेकेंड। किसको किसको ये आंसर आया? क्योंकि 19th वाला मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। 19th वाला था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ओके, मेरा गला सूख गया है, अब मेरी कैपेसिटी के बाहर है। मेरे डाउट सॉल्व करने में ही मेरी हवा निकल गई। अब मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो कल डालने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट,
ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।